Which day is 10th October 2027? Question from logical reasoning और topic है calendar. Finding the day of a particular date. देखो दो तरीके हैं इसको. पहला, आप एक डेट ले लो और उस डेट के थ्रू आप दूसरे डेट पे जाने की कोशिश करो जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया. जैसे 10th अक्टूबर 2027 के बारे में पूछा गया है, तो आप देखो 10th अक्टूबर लेट्स से 2021 का पेपर है, ये कौन सा दिन था, इसके बेसिस पे आप इस डे पे जाओ. दैट इज़ वन वे ऑफ सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा. दूसरा है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट. अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो आप मेरे लॉजिकल रीजनिंग प्लेलिस्ट पे जाओ. कैलेंडर पे हमने 2 वीडियो बनाना है, दोनों देख डालो. ऑलराइट, चलो देखते हैं. इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3. In all of these 3 steps, I take the calculation of odd days, calculation of odd days, COD, calculation of odd days till the previous century year, till the previous year, in the current year. The rest is solve करते हैं, ध्यान देना. Till the previous year. For this particular year 2027, previous century year कौन सा होगा? 2000. So up to 2000 आपको पता है, you get 0 odd days. कैसे? ये आपको एक बार वीडियो देखना पड़ेगा. You will have an idea of this. Now, till the previous year for this year would be 2026. मतलब मुझे फिगर आउट करना है फ्रॉम 2000 तक तो हो गया, तो 2001, 2002 गोइंग अप टू 2026. ब्रेक डाउन कैसे होगा? फर्स्ट राइट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, TY 26. Out of this, how many are leap years? Divided by 4, quotient 6. How many are non-leap years? Naturally 20. Every leap year आपको 2 odd days देगा, every non-leap year आपको 1 odd day देगा. तो this is 12 and this is 20. Add करने पे this is 32. 32 divided by 7, what is our remainder? The remainder is 4 odd days. चलो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन द करेंट ईयर व्हाट हैपेंस. द करेंट ईयर इज 2027. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. January has 31 days or 3 odd days. February has 28 or 0 odd days. March 31 or 3. April 30 or 2 odd days. May 31 or 3 odd days. June 30 or 2 odd days. July and August have 31 days each, so 3 odd days, 3 odd days. September is 30 days, so 2 odd days. October has 10th of October, so 10 divided by 7, the number of odd days is 3. अब ज़रा इनको सॉल्व करते हैं. ऐड करना है सिंपली. 3 + 3 + 2 दैट इज 8. 8 को मैं बोल सकता हूँ 1 odd day. 3 + 3 + 2 8 1 odd day. 3 3 2 8 1 odd day. So you can see it as 3 odd days. Now final answer is always step number 1, step number 2, step number 3 का summation. This is 0 + 4 + 3, which is 7 or 0 odd day. और आपको पता है, if you have seen the video, that if you get the final answer as 0, the day is a Sunday. If you get the final answer after all of this as 1, the answer would be a Monday. 2, the answer would be a Tuesday. And similarly, if the answer is 6, it is a Saturday. So our answer came down to 0. 0 कैसे? 7 odd days का मतलब है 7 divided by 7. The remainder is a 0. Odd days are calculated as odd days is equal to number of days divided by 7. Focus on remainder. और odd day हमेशा आपका 0 से 6 के रेंज में होगा. Now
द आंसर सीम्स टू बी क्लियर, इट्स अ संडे. ऑप्शन ए इज द करेक्ट फिट. ये हो गया आपके लिए मेथड नंबर 1, यूजिंग द कॉन्सेप्ट. चलो लेट्स डू मेथड नंबर 2, दैट इज अगेन विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट. मेथड 2. इफ यू रिमेंबर, ये 10th अक्टूबर को एग्जाम हुआ था 2021 वाला, और इस दिन भी संडे था. अब मुझे बस किसी तरीके से 10th ऑफ अक्टूबर 2027 तक जाना है, दैट्स इट. ओके, सो 10th ऑफ अक्टूबर 2022, ये कितने दिनों के बाद होगा? इट वुड बी आफ्टर 365 days, और 365 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर बोलो. रिमाइंडर इज 1. So can I say it is after +1, which is after 1 would that would be a Monday. आप चेक कर सकते हो. नेक्स्ट 10th अक्टूबर 2023, ये भी आफ्टर 365 डेज होगा, सो +1, इट वुड बी अ ट्यूसडे. 10th अक्टूबर 2024, देखो इसमें लीप ईयर वाले पार्ट में 29 फेब भी काउंट होगा, सो इट इज़ आफ्टर 366 डेज, और 366 by 7, the remainder is 2 odd days, so +2, Tuesday +2 is a Thursday. Next, 10th of October 2025 +1, that's a Friday. 10th of October 2026, again +1, it's a Saturday. And 10th of October 2027, again +1, it would be a Sunday. ऑप्शन ए इज़ आर करेक्ट फिट. आई होप दिस हेल्प्स. आपको इस टॉपिक पे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्लीज़ चेक माई वीडियो ऑन द लॉजिकल रीजनिंग प्लेलिस्ट. कैलेंडर इज़ द नेम ऑफ द टॉपिक. और अगर आपको लग रहा है कि ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यू कैन से इन नो टाइम यू कैन डू दिस कैलकुलेशन, बिकॉज ये लिखना नहीं होता है. येस, यू वुड बी राइटिंग दिस, यू वुड बी राइटिंग दिस, बट ये जो चीज़ें ये मेंटली होनी चाहिए. मैं ये क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, इतना प्रोसेस लिख रहा है. अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस, तो आप इन चीज़ों को मेंटली भी कर सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर. चलो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप दिस हेल्प्स.